آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جسے دنیا کی خاموش طاقت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی پاور رکھنے والا ملک ہے، جس کے پاس آج دنیا کے سب سے مقدس مقامات یعنی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ خوبصورتی میں یہ ملک سوئٹزرلینڈ سے بھی آگئے ہیں۔ یہاں پر ہزاروں سال پرانے قلعے، اولیاء کرام کے مزارات اور ہزاروں سال پرانا کلچر آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے پاکستان، جہاں دنیا کی ہر نسل کے انسان مل جل کر اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو یا پھر جو بھی ہو۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ اس ملک میں آج لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ آج یہ ملک اندر سے کھوکھلا سا کیوں لگتا ہے لیکن باہر سے انتہائی مضبوط؟ یہاں کن اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں؟ ہزاروں سال پرانے قلعے آج کیسے ہیں؟ آج پاکستان کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں کی جدید لائف پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور یہاں کی شادیاں، توبہ توبہ دوستو ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم پاکستان کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پاکستان، جسے دنیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ہی ایک عظیم نظریے پر رکھی گئی۔ جنوبی ایشیا میں واقع یہ ملک قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز میدانوں، صحراؤں اور نیلگو سمندروں کا حسین امتزاج ہے۔ یہی وہ واحد ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اسی لیے یہ نعرہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پیارے دوستو، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھی کسی سے کم نہیں۔ اس کی سرحدیں مشرق میں بھارت، مغرب میں ایران، شمال مغرب میں افغانستان اور شمال میں چین سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں شہر کراچی کے ذریعے خلیج عمان کی وسیع سمندری ساحلی پٹی پاکستان کو دنیا سے جوڑتی ہے، جو تجارتی اور دفاعی لحاظ سے بے حد اہم ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جس کے اعتبار سے یہ دنیا کا 33ویں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی پاکستان دنیا کے نمایاں ممالک میں شامل ہے۔ 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 24 کروڑ 15 لاکھ افراد آباد ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان آج دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے۔ یہ ملک صرف نقشے پر موجود ایک ریاست نہیں، بلکہ یہ قربانیوں، جدوجہد، ایمان اور بے شمار شہداء کی امانت ہے۔ پاکستان ایک نظریہ ہے، ایک شناخت ہے اور ایک امید ہے جو آج بھی کروڑوں دلوں میں دھڑکتی ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر اس کی اصل طاقت دنیا نے 28 مئی 1998 کو دیکھی، جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ اس دن کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا اور پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اس کا سب سے زیادہ دکھ انڈیا اور افغانستان کو ہوا، اور آج بھی ہے۔ چلیے ناظرین، اب ہم رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے مشہور اور تاریخی شہر لاہور کی جانب، جسے بجا طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر زندہ دل لوگوں کا شہر ہے، ایک ایسا شہر جو دن میں خاموش نظر آتا ہے مگر رات ہوتے ہی جاگ اٹھتا ہے۔ لاہور کا کل رقبہ تقریباً 1,772 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے لاہور کراچی کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سے پاکستان اور بھارت کا سب سے مشہور سرحدی راستہ واہگہ بارڈر واقع ہے۔ ہر شام یہاں ہونے والی شاندار پریڈ دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، جو قومی جذبے کی ایک زندہ مثال ہے۔ ناظرین، لاہور صرف تاریخی شہر ہی نہیں بلکہ مہمان نوازی اور ذائقوں کا شہر بھی ہے۔ لاہور کی ہر گلی، ہر محلہ ایک بازار کی مانند ہے، جہاں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانا ملتا ہے۔ پائے، لسی، اچار گوشت، بریانی اور تکا کباب، لاہوری ان ذائقوں کے سچے دیوانے ہیں۔ لاہور کے بازار پاکستان کے بڑے بزنس ہب بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو لاہور جدید سہولیات سے بھرپور شہر ہے۔ یہاں میٹرو بس، اورنج لائن میٹرو ٹرین، جدید سڑکیں اور بہترین بس سروسز موجود ہیں۔ لاہور ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے آپ پاکستان کے تقریباً ہر شہر تک بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ لاہور کی شان اس کی مغل دور کی عظیم یادگاریں ہیں جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔
इनमें लाहौर किला और बादशाही मस्जिद सरफहरिस्त हैं। शाही तिला मुगल बादशाह अकबर आजम ने तामीर करवाया, जो तकरीबन 460 साल पुराना है। खुदाई के दौरान यहाँ से महमूद गजनवी के दौर के सिक्के ही दरियाफ्त हुए, जो इस मकाम की क़िदामत का वाज़ेह सबूत हैं। शाही तिले के बिल्कुल करीब वाक़े बादशाही मस्जिद को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 ईस्वी में तामीर करवाया। सुर्ख पत्थर से बनी ये अजीम मस्जिद आज भी अपनी शान व शौकत की मिसाल है। तकरीबन 355 साल गुजरने के बावजूद ये मस्जिद आज भी लाखों दिलों को अपनी तरफ खींचती है। इस मस्जिद में एक वक्त में 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। लाहौर रूहानियत का मरकज़ भी है। यहाँ हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ार माना जाता है। आप गजनवी दौर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और फ़ारसी ज़बान के मशहूर आलिम थे। आपकी किताब कश्फुल महजूब दुनिया भर में मारूफ है। हर साल आपके उर्स के मौके पर दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन हाजिर होते हैं और लंगर और दूध की सबीलों का वसी इंतज़ाम किया जाता है। लाहौर की एक और अजीम शनाख्त मीनार पाकिस्तान है, जो करारदाद पाकिस्तान की याद में तामीर किया गया। इसकी तामीर 23 मार्च 1960 को शुरू हुई और 21 अक्टूबर 1968 को मुकम्मल हुई। तकरीबन 230 फुट बुलंद ये मीनार आज भी आज़ादी की अलामत बनकर खड़ा है, जिसे देखने के लिए लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मुश्तमिल है। हर सूबे का अपना अलग कल्चर, लिबास, खाने और तर्ज ज़िंदगी है, और लाहौर इन तमाम सकाफ़तों को एक दिल की तरह जोड़ कर रखता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर की। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन और मुनज़्ज़म शहरों में शुमार किया जाता है। ये वाहिद शहर है जो फितरी हुस्न, जदीद मनसूबाबंदी और कौमी वक़ार का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। इस्लामाबाद को 1960 ईस्वी में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया और बाद अज़ां पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से मुंतकिल करके इस्लामाबाद बनाया गया। इस्लामाबाद का शहरी रकबा तकरीबन 220 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि देही इलाकों को शामिल किया जाए तो ये रकबा 906 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल जाता है। आबादी के लिहाज से यहाँ 11 लाख से ज़ायद अफराद रहायश पजीर है और ये पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है। नाजरीन, इस्लामाबाद की पहचान और शान फैसल मस्जिद है, जिसे न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये दुनिया की 6ठी बड़ी मस्जिद है और अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर और हुस्न की मिसाल आप है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 12 अक्टूबर 1976 को हुआ, जबकि ये 2 जून 1986 को मुकम्मल की गई। इस अजीम मंसूबे पर तकरीबन 120 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आई। फैसल मस्जिद को 1966 में सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान को बतौर तोहफा देने का ऐलान किया था। ये मस्जिद अंदर और बाहर से इंतहाई शानदार और दिल को छू लेने वाली है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती इदारों का मरकज़ भी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट हाउस जैसी अजीम इमारतें मौजूद हैं, जो मुल्की निज़ाम की अलामत समझी जाती हैं। इसके अलावा शहर में चिड़ियाघर, तफरीही पार्क्स और बेशुमार सियाहती मकामात मौजूद हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। शॉपिंग के शौकीन अफराद के लिए भी इस्लामाबाद किसी जन्नत से कम नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और जदीद शॉपिंग मॉल्स में से सेंटोरस मॉल और गिगा मॉल इस्लामाबाद में वाक़ हैं। ये मॉल्स इतने वसी, जदीद और ख़ूबसूरत हैं कि इंसान देखकर दंग रह जाता है, और यहाँ दुनिया की तकरीबन हर चीज़ दस्तयाब है। नाजरीन, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खूबी इसका कुदरती हुस्न है। ये शहर सरसब्ज़ व शादाब माहौल, कुशादा सड़कों और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है, जो इसे पाकिस्तान का सबसे पुरसुकून और दिलकश शहर बनाता है। प्यारे दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में शामिल एक अजीम मेट्रोपॉलिटन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा शहर माना जाता है। कराची का कुल रकबा तकरीबन 3527 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि यहाँ 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। यही वो शहर है जो 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। कराची को पाकिस्तान का मुआशी, तिजारती और सकाफती मरकज़ कहा जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है, जहाँ आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आते हैं। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह वाक़ है,
जो मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। यही शहर पाकिस्तान की बरामदात, दरामदात और सनत का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ सिंध हुकूमत के अहम इदारे भी कायम हैं। ताहम इतने बड़े शहर को दरपेश मसाइल जैसे सफाई, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर अवामी बहस का मौजू रहते हैं। इसके बावजूद कराची के लोग अपनी मेहनत, कारोबारी जहन और जद्दोजहद के लिए मशहूर हैं। यहाँ के बासी सख्त हालात में भी जीना जानते हैं और यही वजह है कि कराची को रोशनियों और मौक़े का शहर कहा जाता है। कराची में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी वाक़ है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम कौमी यादगारों में से एक है। सफ़ेद संग मरमर से तामीर शुदा ये मज़ार न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है। 14 अगस्त और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश पर यहाँ खसूसी तकारीब और गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब मुनक़िद होती है। कराची एक कसीर सक़ाफ़ती शहर है, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, ज़बानों और सक़ाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियती बरादरियाँ ख़ुसूसन सिंध और कराची में अपनी मजहबी व समाजी ज़िंदगी पुरअमन तरीक़े से गुजारती हैं, जो पाकिस्तान के आइनी और समाजी हुस्न की एक खूबसूरत मिसाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत मेहनती, बाहिम्मत और सच को सच और गलत को गलत कहने वाली कौम है। अगरचे पाकिस्तान को अक्सर एक गरीब मुल्क कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी कौम का असल सरमाया उसका बड़ा दिल, उसकी गैरत और उसकी मेहनत है। यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की बहादुर और जिंदा दिल अक़वाम में शुमार की जाती है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ की कौम के पास पैसा कितना ज़्यादा है। इसका एक छोटा सा नमूना उनकी शादियों को ही देख लें। पाकिस्तान में एक मामूली सी शादी पर भी 25 से 30 लाख रुपया खर्चा आराम से हो जाता है, जिसमें 10 से 15 लाख तो मामूली सा ये लोग फेंक देते हैं, और फिर भी इस कौम को लोग गरीब कहते हैं। फिर तो हैरत की बात है। लेकिन दूसरा साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर यह भी है कि शादियों में जो कि मेहंदी की रस्म होती है, इसमें तो लोग खूब जमकर पैसा खर्च करते हैं। तरह तरह के डांस इवेंट करवाए जाते हैं, तवाइफ को बुलवाया जाता है, उन पर लाखों पैसे फेंके जाते हैं। लेकिन वहीं जब वलीमा करने की बारी आती है तो अक्सर घर तब गरीब निकल आते हैं। क्या कहते हैं कि अगला घर गरीब है इसलिए वलीमा नहीं कर सकता। मतलब कमाल है यार। ऐसी बहुत सी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। बेशक पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर कायम किया गया, लेकिन आज इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में डांस क्लब मौजूद हैं, जो कि एक मुसलमान मुल्क में नहीं होने चाहिए, जहां पर अमीरज़ादे खूब इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि यहाँ पर अगर कोई कानूनी काम भी करवाना हो तो रिश्वत देनी पड़ती है। चाहे मतलब अपना काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। उसे ही करप्शन कहते हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। खैर छोड़ें। अगर आप पाकिस्तान में कुदरती खूबसूरती और जन्नत जैसी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो यहाँ में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जैसा कि हुंजा वैली, आज़ाद कश्मीर का इलाका, नारान कागान। ये वो इलाके हैं जहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए यहाँ पर प्रॉपर होटलिंग मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है हमारा मुल्क। सोशल मीडिया पर आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी, वो सच होती हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क हो, वो हुक्मरानों से नहीं बनता बल्कि एक कौम से बनता है। जब तक कौम न चाहे, मुल्क कभी भी अमीर और खुशहाल नहीं रह सकता। बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।